So, previous class we were learning about different 5 approaches to study Old Testament theology. पिछले जो क्लास में हम 5 अलग-अलग approaches और 5 अलग-अलग तरीका से हम Old Testament theology को पढ़ सकते करके हम पढ़ रहे थे. उसमें सबसे पहला वाला ये है, we have to start from Old Testament itself. पुराने नियम से ही पुराने नियम का शुरुआत करना है. दूसरा, पुराने नियम का और नया नियम का बीच में रिश्ता क्या है इसके बारे में. और अर्ली चर्च फादर्स, हमारा जो पुराना कलीसिया का पादरी लोग होता है और चर्च फादर्स होता है, वो लोग ये विषय के बारे में कैसा पढ़ रहा था उसके बारे में पढ़ने का, उसके बारे में और वहाँ से लेकर थियोलॉजी को पढ़ सकते करके मैंने बोला. उसके बाद मॉडर्न राइटर्स ने बोला सिनेगॉग ट्रेडिशन से लेकर शुरू करना है. एंड लास्ट अप्रोच, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट को एक साथ पढ़ना है. उसके अंदर से जो मुख्य सब्जेक्ट्स होता है, टॉपिक्स होता है, उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है करके बोला. वो है सिस्टमेटिक थियोलॉजी. सो देयर वर 5 अप्रोचेस ओल्ड टेस्टामेंट, देन studying the relationship between Old Testament and New Testament, and the third one is how early church fathers interpreted, and next in that John Calvin and Martin Luther. There are 2 main figures, and next one was synagogue tradition, and the last one was systematic theology. So the next heading is history of Old Testament theology. Old Testament theology का इतिहास, history of Old Testament theology, page number 5. History of Old Testament theology, page number 5. Page number 5, Old Testament theology, history of Old Testament theology. Earlier we had discussed the 5 possible entry points of Old Testament theology, which included starting from Old Testament itself, the New Testament, early church fathers, medieval interpreters, then Reformation, rabbinic scholars, and later attempt to synchronize the message of Old Testament with biblical or systematic theology. Our focus in this section, अभी जो बातें हम सीखने वाला है इसमें हमारा उद्देश्य, हमारा फोकस है in this section to have an overview of the nature and practice of biblical theology by different groups and scholars over a period of time. ये युग, अलग अलग युग का समय और अलग अलग सालों में, अलग अलग समय में पंडित लोगों ने ये बिब्लिकल थियोलॉजी और ये थियोलॉजी का नेचर और प्रैक्टिस, इसको कैसे उपयोग करना है, कैसे पढ़ना है करके अलग अलग स्कॉलर्स, पंडित लोगों ने क्या क्या बोला और what are the contributions given by or done by all these scholars to the field of ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी. पुराना ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी का ये जो सब्जेक्ट में, ये जो स्टडी में अलग अलग स्कॉलर्स या पंडित लोगों ने क्या क्या दिया और वो लोग भी क्या क्या सिखाया नया नया बातों को, वो हम एक के बाद एक से देखने वाला है. हमारा बीच में अभी 2 स्कॉलर्स का नाम, मेनली 2 स्कॉलर्स का नाम है, बाकी लोग भी है, हम एक एक देख के जाएंगे. सो पॉल आर हाउस करके जो पंडित था, highlighted 4 periods. Each of these moves Old Testament theology studies onto new and challenging ground. पॉल आर हाउस करके जो पंडित था, जो स्कॉलर था, उन्होंने ये जो डेवलपमेंट को और ये ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी कैसा विकसित होके आया और कैसे डेवलपमेंट हुआ करके 4 अलग अलग स्टेज को दिखाते हुए समझाया. 4 अलग अलग स्टेजेस या 4 अलग अलग डिवीजन में उन्होंने हमको समझाया. उसमें से पहला है कुछ स्कॉलर लोगों का नाम. सो अकॉर्डिंग टू पॉल आर हाउस इज ए स्कॉलर. ही मेंशन्ड 4 periods of Old Testament theology or the development of Old Testament theology. Period number 1, page number 6, पहला हेडिंग, beginnings from Gabler to Wellhausen. ये स्कॉलर्स का नाम है. These are the names of different Old Testament scholars. While the Bible has been read theologically since its formation,
In this early medieval and Reformation church, there was no biblical theology or Old Testament theology as a discipline. So, from the beginning, Bible was there. When believers got Bible in their heart, they used to read Bible, but they did not read or they did not approach the Bible as we are doing now. जैसा हम बाइबल के पास जाकर और बाइबल पढ़ता है, वैसा नहीं था पुराना जो विश्वासी लोग पढ़ते थे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारा हाथों में नया नया मिला तो हम भी कैसे पढ़ेगा, हमको पता भी नहीं इसका अंदर का मतलब क्या है, फिर भी हम अगर अक्षर पढ़ना आता तो पढ़ के देते हैं. If we are getting any new book, we will read it, but we don't know what all things are written in that book. So in the same way they used to read. At that time there is no biblical theology or Old Testament theology. Old Testament theology या biblical theology करके कुछ सब्जेक्ट वगैरह उस समय नहीं था, कोई नहीं सिखाता था. 3 चर्च फादर्स का नाम पढ़ रहा हूँ. Tertullian, Augustine, Martin Luther did not do biblical theology by itself. Instead, they did general Christian theology. Tertullian एक चर्च फादर है, अगस्टिन एक चर्च फादर है, मार्टिन लूथर, ये लोग बिब्लिकल थियोलॉजी एक हम जैसा पढ़ रहे ऐसा नहीं पढ़ा, फिर भी जनरल बातें बाइबल की बारे में कुछ बातें वो लोग पढ़ा था. नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ बिब्लिकल थियोलॉजी एज ए सेपरेट डिसिप्लिन और आर कॉमनली ट्रेस टू जोहान फिलिप गैबलर. सो इधर गैबलर करके लिखे हैं ना, उसका पूरा नाम क्या है? जोहान फिलिप गैबलर करके एक व्यक्ति, एक स्कॉलर ने ये बिब्लिकल थियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में लाने के लिए मदद किया. कौन? जोहान फिलिप गैबलर. इन्होंने, इनका जन्म की तेदी कहाँ से लेकर कहाँ तक इधर लिखा है, इन्होंने बिब्लिकल थियोलॉजी करके एक पढ़ाई या स्टडी लेके आने के लिए रास्ता खोला. बिकॉज ऑफ Johann Philipp Gabler, we have biblical theology as a discipline, who made a distinction between biblical theology and dogmatic or systematic theology. So what is the difference between biblical theology and systematic theology or dogmatic theology? What is mean by dogma? ये मैंने बताया था, dogma, teachings. So biblical theology means directly from the Bible. But dogmatic theology or systematic theology comes according to the congregation, we can say, because biblical theology पूरा का पूरा बाइबल से आधारित होते आता है. Systematic theology या dogmatic theology पर्पस के अनुसार, according to the purpose of the church fathers, they also contribute some details or some information to the to Bible, means from the Bible they will also contribute many things. उदाहरण के लिए मत्ती ने सुसमाचार लिखा, हम ये पढ़े थे, मत्ती उनका कलीसिया को मन में रखते हुए और यहाँ एक समूह को मन में रखते हुए लिखता है. सो बिब्लिकल थियोलॉजी का मतलब ये है डायरेक्टली फ्रॉम बाइबल, वो वहाँ लिख सकते हैं आप लोग. सो द सिंपल मीनिंग ऑफ बिब्लिकल थियोलॉजी इज इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन बाइबल. बिब्लिकल थियोलॉजी डायरेक्टली बाइबल से आधारित है. कौन ये बिब्लिकल थियोलॉजी और सिस्टमैटिक थियोलॉजी को अलग कौन किया? जोहान फिलिप गैबलर. While dogmatic theology stems from individual theologians with prior philosophical and ecclesiological commitment. इसलिए मैंने बोला ये जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी है अलग अलग थियोलॉजियन से आया. हमारा हाथ में कमेंट्रीज है ना, वचन तो सेम होगा, the verses are same, Bible is same, but different commentaries have different views. How? और राइटर का संदर्भ कौन था और राइटर कौन सा डिनोमिनेशन का है वो वैसे ही लिखेगा. सो बिब्लिकल थियोलॉजी इज डायरेक्टली रूटेड इन बाइबल. सिस्टमैटिक थियोलॉजी इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट थियोलॉजियंस अकॉर्डिंग टू फिलोसॉफिकल एंड एक्लेसियोलॉजिकल कमिटमेंट्स. समझ आया ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिब्लिकल थियोलॉजी एंड सिस्टमैटिक थियोलॉजी? समझ आया? सो लिखने के समय दोनों को अलग करके लिखना. Then Gabler suggested a 3-stage approach to examining biblical theology. Biblical theology को और पढ़ने के लिए Gabler suggested 3 steps or 3 stages of approach. First was gathering of historical data from Old Testament and New Testament. Gabler ने क्या किया? ये biblical theology पढ़ने के लिए 3 अलग-अलग प्रोसेस को बनाया. सबसे पहला प्रोसेस है you have to find out the historical evidences from Old Testament and
नया नियम से पुराना नियम से ऐतिहासिक एविडेंसेस क्या क्या है ढूंढना पड़ेगा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, ए कंपैरिजन ऑफ वेरियस पार्ट्स एट्रिब्यूटेड टू ईच टेस्टामेंट। दोनों नियमों से, दोनों टेस्टामेंट से दोनों को मिलाने वाला कितना कितना पार्ट्स है वो भी। So the second stage is he suggested, Gabler suggested, we have to find out the relationship between both testaments, or what are the elements giving us the evidence that both testaments are interrelated. समझ है? And the third stage was note the third was to note the agreements and disagreements in order to determine what universal notions emerge. And the third, तीसरा प्रोसेस ये है, ये दोनों, ये जो रास्ता पर मतलब ये जो बिब्लिकल थियोलॉजी के स्टडीज में डिसएग्रीमेंट्स क्या क्या है और एग्रीमेंट्स क्या क्या है, और कौन से चीज़ों को सब लोग मानता है, कौन से चीज़ों के ऊपर डाउट है या आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, उसको भी सेपरेट करने से बिब्लिकल थियोलॉजी के बारे में पढ़ सकते करके गैबलर ने बोला। देन गैबलर नेवर रोट एन ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी। गैबलर ने कभी भी ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी करके कुछ नहीं लिखा, बट इन हिज वर्क जॉर्ज लॉरेंस बोर divided biblical materials into the study of God, humankind and Christ. जॉर्ज लॉरेंस बोर करके एक व्यक्ति ने बिब्लिकल मटेरियल्स को 3 भागों में विभाजन किया। फर्स्ट वन, स्टडी ऑफ गॉड, परमेश्वर के बारे में स्टडी। सेकंड, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। तीसरा, स्टडी ऑफ क्राइस्ट, क्रिस्टोलॉजी करके मैंने पढ़ा था, याद है? If someone is searching or if someone is studying about the personality of Christ or the person and ministry of Jesus Christ, that comes under Christology. वो पढ़ाया था शायद न्यू टेस्टमेंट के समय में, क्रिस्टोलॉजी। सो जॉर्ज लॉरेंस बोर करके व्यक्ति ने क्या किया, ये बिब्लिकल स्टडीज को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ गॉड, देन स्टडी ऑफ ह्यूमन, देन स्टडी ऑफ Christ, study of human. If I am right, that is called as anthropology or sociology we can say. So 3 अलग भाग में पढ़ना शुरू किया। यह है गैबलर टू वेलहाउसन जो हेडिंग के नीचे एक्सप्लेनेशन। तो ये स्कॉलर्स आकर क्या किया, बिब्लिकल थियोलॉजी को, सिस्टमैटिक थियोलॉजी को विभाजन करके अच्छे से पढ़ाया और अच्छे से समझाया, और ये पढ़ने के लिए 3 अलग अलग स्टेजेस है करके समझाया। कौन? जोहान फिलिप गैबलर। उसके बाद जॉर्ज लॉरेंस बोर, शायद जॉर्ज लॉरेंस बोर करके इनका, ये जोहान फिलिप गैबलर का एक रचना है, किताब का नाम होगा, ऐसा लग रहा है मुझको शायद। सो ये जो किताब में उन्होंने 3 भागों में बांटकर पढ़ाई करने के लिए बोला, स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, स्टडी ऑफ क्राइस्ट। देन G.P.C. केसर, नेक्स्ट स्कॉलर का, नेक्स्ट पंडित का नाम है G.P.C. केसर। फॉलोइंग गैबलर्स एंड बोअर सेमिनार, ओके, जॉर्ज लॉरेंस बोर करके अलग स्कॉलर है, अलग पंडित का नाम है। जॉर्ज लॉरेंस बोर करके अलग पंडित का नाम है। उन्होंने क्या बोला, बिब्लिकल मटेरियल्स को, पूरा बाइबल को 3 भागों में बांटकर पढ़ाई करने के लिए बोला। स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, और ह्यूमन बीइंग, स्टडी ऑफ क्राइस्ट। सो स्टडी ऑफ गॉड मतलब बाइबल को 3 भागों में विभाजन करके बिब्लिकल थियोलॉजी को पढ़ने के लिए बोला। नेक्स्ट, G.P.C. केसर, फॉलोइंग गैबलर्स एंड बोअर सेमिनल एफर्ट्स, ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजियंस बिगन टू रेस्पॉन्ड टू देयर फाइंडिंग्स। ऊपर दिए हुए 2 जो स्कॉलर का काम वो लोग शुरू करने से, और पुराने नियम का पंडित लोगों ने भी उनका आवाज उठाना, या वो लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया। Following Gabler's and Boer's similar efforts, because of Gabler and Boer's works, there were many other theologians, those who belong to Old Testament theologians raised their voice or findings. Kaiser was the first scholar to view the study of Old Testament theology as essentially a history of religion rather than a history of God's revelation. इनका नाम क्या है? Kaiser. Kaiser was the first person who said that we have to study Old Testament theology as a history of religion
नॉट ओनली एज अ हिस्ट्री ऑफ गॉड्स और नॉट ओनली गॉड्स रेवलेशन। उन्होंने आके क्या बोला, कैसर ने बोला ये जो ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी को सिर्फ परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य है और परमेश्वर से बताए हुए वचन करके नहीं पढ़ना, एक धर्म का इतिहास किताब के रूप में भी पढ़ना करके बोला। तो कौन सा धर्म का है? पुराना नियम कौन सा धर्म का इतिहास किताब लिखा आता है? जूइश लोग ज्यादा मानता है, एट द सेम टाइम क्रिश्चियंस। हमारा और उनका भी सेम है, एंड कनेक्टिंग विद मुस्लिम्स प्रेजेंट रियलिटी। दे आल्सो नो अब्राहम, मूसा, सब कुछ किसको भी पता है। सो कैसर करके पंडित ने आके बोला हमको इस सब्जेक्ट को या ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी को एक धर्म का इतिहास के रूप में भी पढ़ाई करने की जरूरत। This emphasis on Old Testament theology as a strictly historical exploration was to become a dominant methodology in biblical studies later in the century। और आने वाला पीढ़ियों में इनका ये जो फाइंडिंग्स बहुत अच्छा काम किया, बिब्लिकल थियोलॉजी और ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी को बहुत स्ट्रिक्ट मैनर से और आगे पढ़ाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज ऑफ कैसर at that time Old Testament theology became as a, or Old Testament theology emerged as an important teaching or important subject। even in Bible college we have Old Testament theology, that's why Old Testament theology इसलिए आया, वो लोग उसका ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए बताया। For example, when we are studying Old Testament, we are indirectly studying about the history of, not indirectly, directly we are studying about the history of कौन? History of ओल्ड टेस्टामेंट में किसका कहानी है? इधर हो, इधर हिस्ट्री ऑफ इजराइल, इजराइल लोगों का इतिहास रूप से हम इस किताब को मतलब पूरा पुराना नियम को पढ़ सकता है। अदर स्कॉलर्स हु मेड रिमार्केबल इम्पैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड वर विल्हेल्म एमएल डी बेटे, और there are different scholars who contributed to this view। ये नीचे दिए हुए सब पंडित लोगों ने क्या किया, ये ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी को एक अलग रूप से पढ़ाई करना है, ये एक स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट है करके बोलने में मदद किया। कुछ नाम मैं पढ़ता हूँ, ये जर्मन नाम से होगा, कभी कभी बहुत फ्रेंच नाम जर्मन नाम पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है। विल्हेल्म एमएल डी बेटे, his approach was philosophical approach। विल्हेल्म एमएल डी बेटे करके पंडित था, उसका ये थियोलॉजी को पढ़ने का तरीका था फिलोसॉफिकल, तत्वज्ञान और तात्विक बुद्धि से। विल्हेल्म वाटके करके स्कॉलर था, इन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी को हिस्ट्री ऑफ रिलीजियन का अप्रोच में पढ़ाई किया। हिस्ट्री ऑफ रिलीजियन, धर्म का इतिहास, which had a great influence। ये नोट करके रखना, विल्हेल्म वाटके करके जो व्यक्ति ने ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी को धर्मों का ऐतिहासिक किताब के रूप में पढ़ाई करना शुरू किया, वो बहुत अच्छा से डेवलप हो गया। क्योंकि मैंने सुबह बताया था, ये बलि चढ़ाने के बाद हिंदू धर्म के अंदर भी है, मसीह लोगों के अंदर पुराना समय में भी था। सो देयर इज अ कनेक्शन। बैठना नहीं, आकर इधर खड़े होना। प्रवीण आप भी। नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है, सो ये तो नोट करके रखना, विल्हेल्म वाटके। विल्हेल्म वाटके करके स्कॉलर ने ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी को हिस्ट्री ऑफ रिलीजियन, रिलीजियन नहीं रिलीजियंस, धर्मों का ऐतिहासिक किताब के रूप में अप्रोच किया, पढ़ाई करना शुरू किया। ये बहुत डेवलप हुआ क्योंकि हम हमारा ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हुए आज का हमारा समाज में देखा तो अलग अलग धर्मों में सेम कहानी हम देख सकता है। नेक्स्ट, however, Old Testament theology was reduced to historical questions during this period। Matters of faith were excluded। The historical approach had triumphed on every side। The result was the tyranny of historicism in Old Testament studies। ये जो युग में ऐसा हो गया, ये ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी के बारे में ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, पढ़ना शुरू किया, तब विश्वास की तरीका से ओल्ड टेस्टामेंट को देखना काम हो गया। ऐतिहासिक रूप से सबूत ढूंढते हुए ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि रिफॉर्मेशन का समय, रेनेसांस का समय ऐसा था, लोग
पादरी बोलते हैं सिर्फ वही नहीं मानते थे। They used to think, rational thinking. इंसान भी क्या करना शुरू किया, थोड़ा गहराई से थोड़ा ज़्यादा सोचना शुरू किया। So at this time, people used to approach Old Testament theology or Old Testament as a matter of historical evidence, not only as a matter of faith. Then the later stage is, so first stage, second stage, third stage, the fourth stage, fifth stage. How many stages are there? So many. So the next stage is the dominance of historicism. Historicism का मतलब ये है पुराने नियम को ऐतिहासिक सबूतों के साथ पढ़ना शुरू किया। Simply बताया तो historicism is nothing but looking into something by searching and finding evidences from its history. मैं सिंपल बता रहा हूँ, उसका ओरिजिनल डिफिनेशन अलग होगा। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट को सिर्फ पढ़ा नहीं, इसका इतिहास क्या था करके सबूत भी लोग ढूंढना शुरू किए। उसको क्या बुलाता है? हिस्टोरिसिज्म। इन दैट वन प्रोसेस इज देयर आर्कियोलॉजिस्ट, वो लोग जाकर पूरा अभी भी ढूंढना शुरू किया। सोदम गमोरा का मिला करके मैंने कहाँ पे पढ़ा। और ये कफरनहूम में जो दीवार ऊपर को छत को निकाल कर एक रोगी को चंगाई देने के लिए रखा है ना, उसका भी कुछ सबूत मिला करके बोल रहा है। I don't know, but I do believe all those things are there. अगर हम वो नहीं है करके विश्वास किया तो हमारा फेथ का आधार कहाँ चला जाएगा? वो तो है, शायद किसी को नहीं मिला होगा। खाने के बाद क्लास लिया तो यही प्रॉब्लम। रात को खाने के बाद भी बोला, कभी तो नहीं खाएगा। So during this period, the Old Testament theology was eclipsed by the history of Israelite religion. ये जो समय में इज़राइल लोगों का धर्म की रूप में ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी को मानते थे और देखते थे। 3 factors were responsible. 3 important कारण था ऐसा मानने के लिए। Greater historical consciousness, archaeological discoveries of Mesopotamia, Egypt, Ugarit and Greece among others. सबसे पहले ये था सबको इतिहास ढूंढने में ज़्यादा मन लगा और उसके पीछे ही आधा लोग था। दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट मिला, कहाँ से? मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से, उगारिट से, ग्रीस से। क्या क्या सबूत मिला? ओल्ड टेस्टामेंट का सबूत मिला। और उस समय में ज्यादातर कौन सा लोग जीते? ज्यादातर किसका कहानियां पढ़ता है ओल्ड टेस्टामेंट में? इजराइल। सो ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी और इनका पढ़ाई को एक तरफ से देखा तो इजराइल का रिलीजियन की पढ़ाई करने का समय लोग देखा। थर्ड वन इज द लिटरेरी क्रिटिकल वर्क्स ऑफ वाटके, ग्राफ, क्वीनेन एंड अबोव ऑल विल्हाउसन। तीसरी बात ये था, ये जो विल्हेम वाटके है ना, विल्हेम वाटके, ये विल्हेम वाटके और क्वीनेन और विल्हाउसन ऐसा वाला लोगों ने भी बहुत बातें सबूत के साथ लिखा था। ये भी एक कारण बना। ये सब बातें सीधा लेकर जाकर समाप्त करता है इजराइल का रिलीजियन। समझ आया? वो 3 factors. Then in 1878, Julius Wellhausen's Prolegomena to the history of ancient Israel dictated to a great extent the agenda in Old Testament research. जूलियस वेलहाउसन करके एक पंडित ने, उन्होंने एक किताब लिखा। ये किताब पढ़ने वाला लोगों को सबको क्या मन आया? ओल्ड टेस्टामेंट का रिसर्च करने के लिए मन आया। अभी भी नहीं आ रहा है। कौन था उस स्कॉलर का नाम? इसका विलियम Julius Wellhausen. In his work, many people read his work and they got inspiration that they should go for search of Old Testament theology or Old Testament evidence. His contributions came from his ability to synthesize the finding of earlier scholars into a readable and unified whole.
उनका जो लिखने का तरीका बहुत अच्छा था, पुराना सब बातों को जोड़ते हुए अच्छा से लिखा, पढ़ने वाला सबको पढ़ना भी आता है, समझ भी आते थे। Wellhausen proposed the JEDP documents hypothesis. So next class we may be studying about JEDP theory. एक थियरी है पुराना नियम का 5 किताब के बारे में, there is a theory. JEDP documentary hypothesis which presented Pentateuch as a composite document that was put together from different sources and which could account for seeming contradictions and inconsistencies found in it. So there is a theory called JEDP theory. In that theory we will find out that पहला 5 किताब, first 5 books were one document. हम पढ़ेंगे JEDP theory. इधर तक समझ आया? नेक्स्ट हेडिंग है द री-एमर्जेंस ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी 1920 to 1960. अभी तक एक युग था और एक समय था ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी का। 1920 से लेकर और थोड़ा गहराई से लोग इसका ऊपर ध्यान देना शुरू किया।